Very good morning, my dear students. Today we are going to complete the chapter Forests and Wildlife. The chapter says about the wildlife and the extinct species which are or which were actually resided once in India, and now, due to encroachment or poaching or excessive killing of animals, these are the various reasons why we are lacking in a preservation of wildlife. And it is very important to preserve as well as conserve. Indian government has started various projects to make people understand what is the value of wildlife, why wildlife is extremely important for us, and wildlife has got its own nuances. Because of wildlife, the ecosystem is getting greater and greater by the times. There are certain instances that because of one animal, the whole ecosystem of the island, of a place, or a jungle changes. So every single microorganism is responsible for the ecosystem. So, as we were talking about wildlife protection schemes, let us discuss once again. Some schemes are implemented in India to protect the wildlife. Under these schemes, some projects are started for those animal species which are in danger or which are likely to be extinct in near future. It is already said that many of the species are extinct because of the human encroachment. And what is the meaning of encroachment? I'm using the word encroachment. Many of the people are unaware of it. Encroachment is actually in human behavior. When I was studying psychology, it is said, देखो हमारे पास क्या है, when we have got a house, the government allot us a piece of land and we pay for it. बट इट इज़ आर हमारी आदत है, आपने देखा हो, घर के बाहर एक थोड़ा सा एरिया हम कैप्चर कर लेते हैं ताकि वहाँ पे ट्रीज़ लगा दें, क्योंकि हम चाहते हैं वहाँ ट्री लगा दें, बाकी कहीं नहीं लगाएंगे, हम वहाँ लगाएंगे ताकि शेड हो जाए और हमारी कार वहाँ पे खड़ी रहे या फिर हमारी बाइक्स वहाँ पे खड़ी रहे, फॉर आवर ओन बेनिफिट. दैट इज़ गुड, फॉर प्लांटिंग ट्री इज़ गुड एनीवेयर, बट दैट इज़ अ कॉमन प्लेस. वो रोड है, रोड के ऊपर हम इंक्रोचमेंट करते हैं, हमारी आदत है. फिर जंगल्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पे इंक्रोचमेंट करते हैं. या फिर अगर आपका शॉप है कहीं पर, आपने काफ़ी सारी शॉप्स देखी होंगी, वो शॉप्स के बाहर की तरफ भी वो एक बड़ा सा बैम्बू या टारपोलिन लगा के आगे की तरफ उसको बढ़ा देते हैं ताकि और बैठने का एरिया करते थे. रेस्टोरेंट्स में भी आप बहुत जगह देखा होगा, शॉप छोटी सी होती है, उसके आगे बहुत सारी कुर्सियाँ लगा देते हैं, भले वो रोड को टच हो रहा हो. तो दैट इज़ नोन एज इंक्रोचमेंट. दैट इज़ इन आर ह्यूमन बिहेवियर. हमारी आदत है 2-3 मीटर ले लेने की. तो इस चक्कर के अंदर क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रोचिंग द जंगल्स. सो under these schemes, some projects are started for those animal species which are in danger or which are likely to be extinct in near future. अब कौन कौन से animals हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं. Let us know about some of these projects in brief. Number 1, Tiger Project. As per one estimate, there were more than 40,000 tigers in India. इन बिगिनिंग ऑफ 20th century 19th century इसको हम बोलते हैं. उसकी शुरुआत के अंदर आप देखेंगे 1900 के बाद से टाइगर हंटिंग बिकेम अ स्पोर्ट. इट हैज़ बिकम अ गेम. और मैनी किंग्स, महाराजास एंड नवाब्स invited British people, British governors or generals or on different peoples on different posts for hunting tigers. It's a kind of a प्राउड मोमेंट फॉर देम टू किल अ टाइगर. ये बहुत एक उनके लिए बड़ी बात थी. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि टाइगर पोचिंग शुरू कर दी. उसके लिए टाइगर हंटर्स थे, अब वो हंटिंग करते टाइगर्स की, बिकॉज दे थॉट दैट टाइगर्स तो बहुत है, टाइगर की कहाँ कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है. एंड लेटर ऑन वी केम टू नो दैट द टाइगर्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट एंड बिकॉज ऑफ टाइगर्स द इकोसिस्टम इज लेवल्ड. बट वो किस कारण से, ड्यू टू द अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग. राजा महाराजा वही स्पॉन्सर करते थे, उनका एरिया था उस टाइम पे. इंडिया वॉज नॉट यूनाइटेड एट दैट टाइम. द किंग्स स्पॉन्सर्ड द किलिंग
तो वो हाथी के ऊपर जाके 20-20, 25-25 दिन एक एक आदमी कोई हज़ार शेर मार के आते थे. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन. एंड डिफॉरेस्टेशन और पेड़ों को काटा जाना. देयर वाज अ बिग डेंजर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइगर्स. टाइगर छुप के रहना पसंद करता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ कैट, एवरीबडी इज नोन. आपको पता होगा ये कैट प्रजाति का है, तो वो छुप के शांति से रहना चाहता है. अब छुपने के लिए क्या चाहिए? जंगल. एंड वी आर कटिंग डाउन द जंगल. In such circumstances, this project to save tigers was started in 1971. The Tiger Project was started in 1971. It's very important. Under the project, a series of steps are taken to keep their natural habitat protected and to maintain ecological balance at national level. So, the government has taken the opportunity or taken the responsibility to maintain ecological balance at national level. Till now, this project is implemented in about 44 regions. 44 regions of India. So it's a very important tiger project. Then leopard. Leopard belongs to cat family. It holds smaller stature compared to lion and tiger. It is found everywhere in India. It is also found in dark black color. Kabini forest in Karnataka. It has been seen. आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा KABINI. काबिनी. काबिनी बस काबिनी लेपर्ड लिखेंगे तो you will see very fine and beautiful black leopard. It was seen a few weeks ago. It was all over the place on internet also. And the king of Kabini, it is said. And many people said that it is a female. So female leopard. So it can't be a king. She is queen. तो वो आप गौर से देखिएगा उसको. काबिनी का. Leopard belongs to a cat family. It belongs smaller stature compared to lion and tiger. It is found everywhere in India. It is found in dark black color. It is found in लार्ज नंबर इन फॉरेस्ट्स ऑफ गुजरात. गुजरात में बहुत सारे हैं. दीपड़ा जिसे हम बोलते हैं. इट ऑफ्टन कम्स टू ह्यूमन सेटलमेंट्स. पीपल अनोइंगली कॉल्ड इट चीता ऑल्सो. तो लोग इसे चीता भी बोलते हैं, बट चीता इज समथिंग एल्स. इसका स्टैचर चीता से डिफरेंट होता है. अब चीता जो है, इट इज़ टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन. इफ समबडी आस्क्स यू के वेयर आर मोस्ट ऑफ द चीताज रिसाइड इन इंडिया और इन विच फॉरेस्ट चीताज फाउंड, तो इंडिया है ही नहीं. दे आर टोटली एक्सटिंक्ट. इट इज़ गॉन. टुडे इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. इंडिया के अंदर है तो जू के अंदर है. इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन द कैप्टिव स्टेट ओनली. जू के अंदर ही आपको चीताज देखने को मिलेंगे, बाकी देखने को नहीं मिलेगा. देन एलिफेंट प्रोजेक्ट. दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1992. जो प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है उसका ध्यान रखना. नंबर सेकेंड बारे में, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोवाइड द एलिफेंट्स प्रोटेक्शन इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स and to protect habitats and their migratory corridors. Elephants tend to walk a lot and they have got their own corridors, their own jungles. From jungle to jungle, they walk on a certain way, certain pattern. They have got certain pattern. उस रास्ते पे ही वो चलते हैं. अब now, due to our convenience, we make roads for our convenience. कि हमको उस विलेज से इस विलेज जाना है तो हम रोड. अब वो जो रोड है उसके बीच में से, उनके जो रास्ते के बीच में से हम जब अपना उनके कॉरिडोर में से रोड्स बना देते हैं तो वो तो जहाँ से गुजरता वहीं से गुजरेगा. तो वी थिंक दैट दे आर क्रॉसिंग अस. फिर वो इनरेज होके, गुस्सा होके, और वो दे स्टैम्प पीपल और दे किल पीपल. तो वी थिंक दैट एनिमल्स आर द एलिफेंट्स आर ब्रूटल, बट इट इज़ आर प्रॉब्लम. इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट कॉरिडोर. उनके कॉरिडोर्स को हमको पहचानना चाहिए. Today, there are about 26 protection zones for elephants in the country. अब elephant protection zones हो चुके हैं. After the implementation of this project, there has been an increase in the number of elephants in the forest. Elephants की भी poaching की जाती है for their teeth. अब poaching word जो आपने कई बार सुना होगा, यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया. poaching का मतलब क्या है? POACHER, poacher और poaching. Poaching का मतलब है to killing an animal for their tooth, skin, bones, etc., hair and different kind of things. अब one horned rhino is killed because of their horn. अब जो उसका हॉर्न है वो एक्चुअल में उसका बालों का गुच्छा है. वो बाल ही है, उसके कड़क बाल होते हैं. तो बट इट इज़ सेड दैट इट हैज़ गॉट मेडिसिनल वैल्यूज़. इफ़ यू कीप दैट विद यू, इट ब्रिंग्स यू गुड लक. वो हज़ारों लाखों यूरोज़ में, पाउंड्स में, फॉरेन में बिकता है. तो उसके लिए वो गेंडे का जो राइनोसोरस है उसका वो काटने तो देगा नहीं, उसको किल तो करना ही पड़ेगा. तो इसी प्रकार से दीज थिंग्स हैपन. तो उस पर रोक लगाई जाती है. बिसाइड दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो वर्क फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स. अब देयर आर मेनी डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स ऑल्सो, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है. जैसे कि मैसूर के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं दशहरा. तो
तो मैसूर का दशहरा वर्ल्ड में फेमस है, वहाँ पे एलिफेंट प्रोसेशन निकलता है। तो वो एलिफेंट प्रोसेशन के अंदर करीब 21 एलिफेंट्स और 51 एलिफेंट्स होते हैं, जिनको बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है, और दे डांस ऑन द बीट्स, वो बीट के ऊपर चलते हैं प्रोसेशन की तरफ, पूरा बारात की तरफ, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है वैसे एलिफेंट्स की। अब एलिफेंट्स को कंट्रोल करना, आर्मी बैंड्स बहुत म्यूजिक बजा रहा है, पटाखे छोड़ रहे हैं लोग उसके अंदर, तो उसको पूरे साल डोमेस्टिकेट करके सिखाया जाता है ये सब चीज़ों को। तो दिस, और उनका ख्याल भी बहुत रखा जाता है, उनका जो डाइट है उसका भी ध्यान रखा जाता है। So these things come under the law. Then the rhino project. This project is started for the production of one-horned rhino of India. In India, most of the rhinos are found in Assam state. These are also found in less number in Sundarban of West Bengal. According to the strategy of Rhino Vision 2020, an increase in the number of rhinos is targeted at 3,000. Ab rhinos are getting less because the jungles are being cut down. So most of the rhinos are residing or found in Assam state, or these are less number are found in Sundarban, West Bengal also. So according to the strategy Rhino Vision 2020, they have make a vision, Rhino Vision, they have they wanted to achieve a goal of 3,000 rhinos, at least 3,000 rhinos उनके होने चाहिए. Things to know: one on Indian rhino. It is seen in the marshy regions of Brahmaputra and Sundarban. It is hunted for preparing medicine from its horns. ये मैंने आपको बोला था. It is known for. अब it is not proven by anyone that it has got medicinal qualities. So it is being killed by the people. जिसको बोलते हैं नीम हकीम. ठीक है, इंग्लिश में हम उसे वर्ड यूज़ करते हैं क्वैक. These people are quacks. QUACK. क्वैक का मतलब क्या है कि अपने हिसाब से उसने कुछ भी जड़ी बूटी के टाइप से बना दिया, कुछ उसका मतलब नहीं है. इट इज़ अ हर्बीवोरस एनिमल, हर्ब्स खाता है. ड्यू टू द अटेम्प्ट्स ऑफ इट्स प्रोटेक्शन इट्स नंबर हैज़ इंक्रीज्ड. अटेम्प्ट के प्रोटेक्शन की वजह से इसके नंबर इंक्रीज हो चुके हैं. Let us talk about the crocodile project. Crocodile and alligator species. Alligator species are found in India only. So they are known as ghadiyal also. They have got long beak. This species of alligators, which is found in fresh water, was on the verge of extinction in the decade of 1970s. Some of the alligators were on the verge of extinction. ये खत्म होने की कगार तक पहुंच गए थे in the decade of 1970s. The government of India took timely steps to start that project. When I was very young, I used to visit zoos. मुझे zoo का बहुत शौक था. तो मैं जब zoo पे जाता था तो सबसे पहले the fine I've seen alligator in Udaipur Zoo. And I got very fascinated by it. And by far the best zoo I have visited is Mysore Zoo. It has got different kind of animals from all over the world. It has got gorilla also. बाकी गोरिल्ला पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं. इट इज़ ओनली गोरिल्ला इन साउथ ईस्ट एशिया. तो सिंगल गोरिल्ला है वो. तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए. The government of India took timely steps to start this project, and I have seen alligator in Udaipur Zoo. I remembered. Then vulture project. Vulture is the cleanliness worker of the nature. It eats the meat of dead animals. There are about 9 subspecies of vulture in India. Due to the unusual decrease in the number, this project was started in 2004. अब इसको ऐसा भी बोला जाता है द क्लीनर ऑफ द सोसाइटी. ये क्लेनलीनेस का ध्यान रखता है. कैसे? डेड एनिमल्स का कोई यूसेज नहीं, और वो आप देखेंगे डेड एनिमल्स में से बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे निकलेंगे जो बीमारियाँ फैलाते हैं. और जब बहुत डेड एनिमल्स का नुकसान हो जाता है, मर जाते हैं, तो पुराने टाइम पे उनको शहर के बाहर फेंक दिया जाता था. तो वो जो एरिया है वो पूरा ख़राब होके वहाँ पे बैक्टीरियाज और बीमारियाँ फैलने का चांसेस रहते थे. तो वल्चर्स क्या करते हैं, आके और उनको सबको खा के निपटा देते हैं. तो उनको कुछ नुकसान नहीं होता और वो इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं. देन स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट. दिस स्पीशीज विच इज़ फाउंड at an altitude of about 3,000 meters in Himalayas lives in snow only. This project was started in 2000 with the purpose to increase the knowledge about snow leopard among the local people, so the people would be aware to protect it. Besides these other projects which are operational during Kashmiri Hangol project, it's a type of deer. Then Red Panda project, Manipur Tamil project for the special species of deer found in Manipur. Then Ganga Dolphin Project. There's a dolphin, we've already discussed about the dolphin. Ganga Dolphin Project and Ganga Brahmaputra rivers, etc. It resides in Ganga and Brahmaputra rivers, etc. Then sanctuaries, national park and bioreserves. Sanctuaries, national parks and bioreserves are established for the protection of wildlife.
All these three words sounds like synonymous, but there is some difference. लेट अस बी फेमिलियर विद देम. अब तीनों एक जैसे लगते हैं पर इनके डिफरेंस क्या क्या है. सैंक्चुरी में क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड विद इन सर्टन लिमिट. सैंक्चुरी के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की जा सकती है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है? एनिमल ग्रेजिंग हो सकती है, वो लकड़ी चुन सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, आदमी जा सकते हैं वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़. और वहाँ पे ग्रेजिंग की जा सकती है कुछ इलाकों में जहाँ तक कि उनको अनुमति है. गिर के अंदर भी अगर आप रोड से ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पे आगे जाके कई जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं कि उस रोड से आप नहीं जा सकते हो, बाकी आप जा सकते हो. तो वो अंदर का एरिया, उसको कोर एरिया बोलते हैं. तो दीज आर आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीशीज. अब कुछ स्पीशीज़ के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश की गई है. दिस सेंचुरी कैन बी इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर सर्टन प्रोसेस. और गवर्नमेंट ही उसे प्रोसेस में लाती है. Then Periyar, I visited Periyar also. Periyar is a fine sanctuary. Then Chandraprabha, Eturnagram are famous sanctuaries. नाम याद रखना, Periyar, Chandraprabha and Eturnagram. Major national parks and sanctuaries. ये जब when we were discussing, when we are going to discuss about the maps, I'm going to give it to you as well as we are going to jot that thing down. Then national park. कंपेयर टू द सेंचुरी दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन. नेशनल पार्क ज़्यादा प्रोटेक्टेड जोन है सेंचुरी के मुकाबले. मोर देन वन इकोसिस्टम इंक्लूडेड हियर. यहाँ पे और ज़्यादा इकोसिस्टम्स कैसे? यहाँ पे मरीन एनिमल्स भी हो सकते हैं और जंगली जानवर भी हो सकते हैं. देर इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग. यहाँ पे कोई एनिमल ग्रेज नहीं कर सकता, किसी जानवर को चरने की अनुमति नहीं. इट इज़ नॉट सेंटर्ड अराउंड वन स्पीशीज़ एज इट इज़ इन सेंचुरी. और वो एक के अंदर नहीं, जैसे टाइगर सेंचुरी होती है, बर्ड सेंचुरी है, केरला देवा बर्ड सेंचुरी है, वैसे ये सेंटर एक स्पीशीज़ के लिए नहीं है, इसमें कोई भी जानवर रह सकता है. इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. अब इसमें दोनों का सहयोग होता है, स्टेट का और गवर्नमेंट का. देन काजीरंगा देखेंगे आप. काजीरंगा जो है वो है नेशनल पार्क है. अब इसके अंदर राइनोसरस भी है और भी बहुत सारे जानवर हैं. देन कॉर्बेट के अंदर भी बहुत सारे जानवर हैं. जिम कॉर्बेट, वेलावदर आपको पता है. मरीन नेशनल पार्क है, गिर है, डाचीगाम एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स. देन बायो रिजर्व जोन. इट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नॉर्म्स. अब ये बायो रिजर्व अलग टाइप के हैं. द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन. अब उसमें वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उनके पेड़ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बायोडाइवर्सिटी उसकी फिजिकल है और कल्चरल. वहाँ पे रहने वाले लोग भी इंपॉर्टेंट है. ज़रूरी नहीं है वहाँ पे जानवर हो. वहाँ पे जानवर तो छोड़ो, वहाँ पे लोग, कुछ एनिमल, ऐसे कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं, कुछ ट्राइबल पीपल है जो वहीं रहते हैं. बिसाइड्स द वेजिटेशन, इंसेक्ट एंड लैंड ऑफ दैट एरिया, द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल लिविंग देयर इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड. तो उनको जिस तरीके से जीना है वो भी उनके लिए अनुमति है. स्पेशल अरेंजमेंट्स आर क्रिएटेड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग अबाउट बायो रिजर्व्स. अब उनके लिए कुछ स्पेशल क्रिएटेड किया जाता है रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए बायो रिजर्व. इन सच प्रोक्लेम्ड एरिया ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड. कोई भी ह्यूमन मूवमेंट्स वहाँ पे अलाउड ही नहीं है. ना तो ग्रेजिंग होगी एनिमल्स की, ना जाना है, अलाउड ही नहीं है. वो बिल्कुल कोर जोन्स है. ठीक है, प्रोक्लेम्ड एरिया है. द एवरेज एरिया ऑफ सच जोन इज लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर्स. कम से कम 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होता है इनका, तब उसको बायो रिजर्व जोन किया जाए. जैसे कि नीलगिरी फॉरेस्ट है, गल्फ ऑफ मन्नार है, ग्रेट निकोबार, अब निकोबार आपको पता है अंडमान निकोबार जिसको हम बोलते हैं, सुंदरबन है पूरा एरिया, पंचमढ़ी का एरिया है, are considered to be important bioreserves for the nation. Then Ran of Kutch of Gujarat was declared as bioreserve zone in 2008. और रण का जो कच्छ है, कच्छ का जो रण है उसे भी 2008 के अंदर बायोरिजर्व घोषित किया गया for the protector of its special environment conditions. Then you like to know that bio protection zone इंडिया में 18 है, नेशनल पार्क 103 है, सेंचुरी 531 है. गुजरात के अंदर बायो प्रोटेक्शन जोन 1 है, नेशनल पार्क 4 है और सेंचुरी 23 है. ठीक है. डेवलपमेंट प्रोसेस इज इनएविटेबल, वो कभी रुकता नहीं है. बट अलॉन्ग विद इट इज़ नेसेसरी दैट वी कीप इट इन माइंड दैट इट्स इल इफेक्ट्स ऑन द एंटायर लाइफ सिस्टम वाइल प्लानिंग. अब सबसे बड़ी बात यह है कि इल इफेक्ट्स भी होते हैं. हम प्रोसेस तो कर रहे हैं अब बढ़ने का डेवलपमेंट के लिए. Wherever one species is completely destroyed or is in danger, the results of disturbance in the food chain are far-reaching. एक भी स्पीशीज अगर ख़त्म होती है तो सिस्टम पूरा हिल जाता है. इन फूड चेन एवरी इंसेक्ट हैज़ अ स्पेसिफिक रोल. इफ अ लाइफ इज लॉस्ट द एंटायर स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस
such disturbance. If one species is removed, the natural system breaks down in long run. अगर एक species भी खत्म होती है तो natural system break down हो जाता है. These effects reach man very late, hence we are not aware of it. Those environmental dangers which we are following are the result of carelessness developed before decades. अब ये जो environmental dangers हैं वो reason क्या है कि हमारे खुद के dangers हैं जो हमने carelessness की वजह से हमने decades सालों से उस पर ध्यान नहीं दिया. If we plan development there will not be any problem. Friendly approach with the environment is the need of the present day. Then things to know. Henotaro. This animal lives in arid and semi-arid regions having alkaline forest and grassland, desert and semi-desert area. It lives in greater and smaller run of Kutch of Gujarat. अब ये जो एनिमल है हेनोटारो, शायद आपने शायद ही कभी देखा हो, ये रण ऑफ कच्छ में रहता है. बन्नी एंड नारायण सरोवर सेंचुरीज के आसपास रहता है. इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज इट स्लाइटली टॉलर देन द फॉक्स. फॉक्स से थोड़ा बड़ा होता है. एज फ्लैशी राउंड माउथ एंड हाई ईयर्स, कान बड़े होते हैं. इट हंट्स स्मॉलर बर्ड्स एंड एनिमल्स. Its existence can be known by its footprints. इसके footprints से वो पकड़ में आता है. Then dugong. It is an aquatic animal. It is seen in very small numbers along the western sea coast of India. Western sea coast के आसपास दिखाई देता है. Western sea coast गुजरात का जो sea coast है. Besides, it is also found along the sea coast of East Africa, Southeast Asian seas coast, sea coast and northern coast of Australia. सी ग्रास एंड वेजिटेशन इज इट्स मेन फूड. ये सी ग्रास और वेजिटेशन को खाता है. बट ओकेजनली इट ऑल्सो ईट्स एक्वाटिक एनिमल्स. और कभी कभी ये मछलियों को भी खाता है. इट इज़ वाइडली हंटेड फॉर इट्स मीट एंड फैट. और डुगोंग को उसके मीट और फैट के लिए हंटिंग की जाती है. अर्लियर दिस डुगोंग वॉज फाउंड फ्रीक्वेंटली अलॉन्ग गुजरात कोस्ट. पहले गुजरात कोस्ट पे बहुत फ्रीक्वेंट था, स्पेशली अलॉन्ग सौराष्ट्र कोस्ट. बट टुडे इट इज़ रेयरली सीन अलॉन्ग गुजरात कोस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पोचिंग और हंटिंग. Though these animals are about to extinct. हमने टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में सुना, राइनो प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, अलग अलग जानवरों के बारे में हमने जाना, लेपर्ड के बारे में जाना. पर ये जो जानवर है जैसे डुगैंग, इसके बारे में हम नहीं जानते थे. देन हिनोटारो, अब ये आर अबाउट टू एक्सटिंक्ट. देन इन दिस चैप्टर द writer wants to say that it is our responsibility to take care of these animals so we can make a greater ecosystem and a balanced ecosystem for our next generation. So for today we are going to conclude this chapter. The chapter number 9th is completed, I think. Yes. Then the notes are already uploaded on the BDVS app. Please go through it. And if you've got any kind of doubts, please feel free to ask. I'm going to give you the answers. And please write the things down. It is very important. Afterwards, people ask, sir, how many questions to write? It is important to write the questions or not. You know the answers all the times. Don't ask repeatedly the same questions. So take care, have a good day, and study hard.